Okay, ji, let's start the things about media ecology. First of all, we need to understand what is meant by media ecology. The whole idea rotates around the phenomena of. First, we need to understand what is media. Media is all about the medium of communication, and ecology refers to the environment. We need to understand the environment of communication Why communication is important? Because it must contain ideas, opinion, beliefs. ठीक है जी. So we need to understand the environment of the media, how the environment of the media is changing over the period of time. Okay, so if we talk about the environment of the media, historical context of the media, initially the whole world is evolving. The whole world is evolving towards the new forms of the media, towards the new age of the media. Okay, so if we talk about the basic inventions of the media, it starts from the literal age, or the time period where initially people used to communicate with the word of mouth. Okay, इनिशियली लोग क्या किया करते थे, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ को यूज़ किया करते थे. सही है, यानी कि लोगों की 1-to-1 कम्युनिकेशन होती थी. अब 1-to-1 कम्युनिकेशन क्या होती थी? अब 1-to-1 कम्युनिकेशन इट्स क्वाइट सिंपल थिंग कि भाई लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इधर से उधर बात को कम्युनिकेट कर रहे थे. एंड आफ्टरवर्ड्स there is something like 1-to-many communication. One-to-many communication is a start of mass communication practices. Okay, and afterwards, in this era, we are having many-to-many communication. Multiple individuals are going to communicate with each other. That is all about social media. Okay, देखो दुनिया के अंदर मीडिया इकोलॉजी कांस्टेंट चेंजेस का शिकार है. किसका शिकार है बेटा? कांस्टेंट चेंजेस. सही है, याद रखना, देयर is no fixed environment or ecology for media or communication. दुनिया भर के कम्युनिकेशन पैटर्न्स, चाहे आप अफ्रीका के ट्राइबल एरियाज़ में चले जाएं या आप न्यूयॉर्क चले जाएं, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, उनका मीडिया इकोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. इस चीज़ को हम कहते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस एंड क्रॉस कल्चरल चेंजेस. इन मीडिया इकोलॉजी देयर आर कांस्टेंट historical changes and cross cultural changes. Historical changes means time to time. ठीक है, यानी कि over the period of time there are constant changes in media ecology or the environment of the media, or you can say communication patterns. If you talk about cross cultural changes, it means differences on the basis of society to society. Whenever we compare a media from one society to another society, there are huge changes from one society to another society. यानी कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में अगर हम जाते हैं तो मीडिया के अंदर चेंजेस बहुत कांस्टेंट लेवल पर नज़र
हमें आ रहे होते हैं, ठीक है. First of all, I'm going to share example with you guys. Let's suppose if we talk about the historical context, the similar context like media regulations. Cross-cultural context means the similar context like media regulations. The media regulations are changing time to time and society to society. So the media ecology is also changing time to time and society to society. देखो दुनिया के अंदर there were several elements जिनको हम मीडिया कम्युनिकेशन के हवाले से इकोलॉजिकल चेंजेस के हवाले से डिस्कस करते हैं. नंबर 1 वाज लिटरल एज. जब दुनिया के अंदर फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स आते हैं और लोगों को पता चलता है कि वो जो भी बात बोल रहे हैं वो लिख सकते हैं, दैट्स अ स्टार्ट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, दैट्स अ स्टार्ट ऑफ द. आफ्टरवर्ड्स प्रिंटिंग प्रेस आता है दुनिया के अंदर एंड देयर इज अ स्टार्ट ऑफ printage. Getting the point? ठीक है. Printage is dependent on printing press. And afterwards, there is another invention we used to call telegraph आता है दुनिया में, and that telegraph initiate the electronic age. Electronic age of communication. Start from telegraph. देन रेडियो आता है दुनिया में. ये सारा इलेक्ट्रॉनिक एज चल रहा है, ठीक है. फिर टीवी आता है, ठीक है. एंड ऑल दोज थिंग्स आर एलिमेंट आर लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक एज, सही है. एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक एज देयर इज अ स्टार्ट ऑफ डिजिटल एज. द होल आइडिया ऑफ सोशल मीडिया. Recently, there is a launch of digital media channel in Dubai named Nukta. Search कर लीजिएगा अपने पास Nukta. And Nukta is you can say it's a digital media platform. समझना ये how they are operating, ठीक है. Platform. This is you can say this is the start of new media ecology. What they are doing, they are based in Dubai, UAE, and they are covering the news of India, Pakistan, Bangladesh, UAE, Bahrain, Qatar. Getting the point? Previously, the news channels were more in towards the national side. The digital media blurred that particular boundary, and the digital media platforms can talk about all around the world. So the Nukta idea of the Nukta is more about the phenomena. They are based in Dubai, which is a global city, and the sign of the global media, digital media, and they are expanding their horizon all around the world. They are covering the stories. This is not about the national newspaper. This is all about the international newspaper. Got it? So the whole mechanism, the whole ecology is changing. Say it. Now I'm moving forward with another phenomena. देखो the mass communication, the initial level of mass communication. First we need to understand the mass communication, which is all about the print media and electronic media. First of all, you need to understand what is meant by centralized media. You need to understand the term centralized media. What is this all about? The whole idea of centralized media rotates around the phenomena like there is a producer who used to produce a product and there are consumers. This is the one-sided communication. अगर ऑडियंस को प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, they cannot directly communicate with the content. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चीज़ आ रही है आपने उस चीज़ को देखना है. That's a whole idea of mass communication or one-sided communication. Got it? So this was a one form of media ecology you can say. ठीक है. होता क्या है,
देखो दुनिया के अंदर जब लोग वर्ड ऑफ माउथ के साथ कम्युनिकेट करते थे, वंस दे गॉट टू नो दे कैन राइट देयर वर्ड्स, तो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, एम आई राइट? फिर जब वो लिखने के बाद उन्हें पता चला कि भाई ये तो प्रिंट भी हो सकता है, हज़ारों लोगों तक पहुंच भी सकता है, दैट वाज आल्सो अ बिग इन्वेंशन, सही है। एंड आफ्टरवर्ड जब उनको पता चला कि भाई वी कैन इलेक्ट्रॉनिकली submit our documents, electronically we can communicate from one part of the world to the another part of the world, that's also a big invention. Like I'm going to give you a very basic example. इसमें भी inventions हो रही होती हैं. मीडिया इकोलॉजी टेक्नोलॉजी की मोहताज है, याद रख, सही है। याद रखना एक चीज़ यहाँ पे अपने जहन में बिठा लो, मैं शुरू में लिख देता हूँ बल्कि, the whole media ecology, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, the whole media ecology, यानी कि जो environment of the media is dependent on technology. If there is a change in technology, there must be a change in media ecology. Am I right? If there is a change in technology change हो जाएगी, there must be a change in media ecology. I'm going to give you a very mature example. Okay, like पहले क्या होता था बेटा, हमारे पास टेरेस्ट्रियल टीवी हुआ करते थे। क्या होता था बेटा? सही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, टेरेस्ट्रियल टीवी। अब टेरेस्ट्रियल टीवी क्या होते हैं? जैसे कि पहले पीटीवी होता था, टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर बेस्ड टीवी था। क्या था बेटा? ट्रांसमीटर। एक टीवी की ट्रांसमिशन एक ट्रांसमीटर पे जाएगी और वो 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की रेडियस के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी और लोगों के घरों में होंगे एंटीना जिससे वो कैप्चर कर लेंगे। ठीक है। टेरेस्ट्रियल टीवी का मसला ये था कि ये सिर्फ लोकल लेवल के ऊपर या मैक्सिमम नेशनल लेवल के ऊपर ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट कर सकता था। सही है। नेशनल लेवल ट्रांसमिशन यानी कि पीटीवी के ट्रांसमीटर्स जहाँ जहाँ लगे हुए होंगे वो बस वहीं पे ट्रांसमिशन जाएगी। दुनिया में सिनेरियो चेंज हुआ जब सैटेलाइट चैनल्स आए। सैटेलाइट चैनल का सीन क्या हुआ समझिएगा। सैटेलाइट चैनल्स आर द चैनल्स यू कैन से जो कि इंटरनेशनल ट्रांसमिशंस पे कैरी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इंटरनेशनल ट्रांसमिशन, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज एक रशियन टीवी चैनल है और मैं वो पाकिस्तान में देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरा डिश है उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा एंड आई कैन ईजिली ट्रांसमिट आई कैन गेट द ट्रांसमिशन। मैं उसकी ट्रांसमिशन को डाउनलिंक कर सकता हूँ अपने पास। समझ में आई बात? अब देखो इस पूरे मैकेनिज्म ने ट्रांसमिशन को नेशनल बाउंड्री से इंटरनेशनल बाउंड्री पे ले गए। समझ में आई बात? सैटेलाइट चैनल से अब दुनिया डिजिटल चैनल्स की तरफ जा रही है। एम आई राइट? जो कि लेस एक्सपेंसिव हैं, इजी टू एक्सेस हैं। सही है। ऐप स्टोर्स भी ऊपर आ रहे हैं। समझ में आई बात? यानी कि सैटेलाइट चैनल से दुनिया आ गई डिजिटल चैनल के ऊपर। समझ में आई बात? दैट इज ऑल अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑफ कंटेंट। एम आई राइट? यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसमिशन से अब आ गए ग्लोबल ट्रांसमिशन, ग्लोबल एक्सेस। हर इंडिविजुअल के हाथ में फ़ोन है तो वो डिजिटल चैनल को एक्सेस कर सकता है।
आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ द नुक्ता. नुक्ता की ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, समझ में आएगा क्या है. सही है. कामरान खान इज हेडिंग दैट चैनल. ठीक है. और द होल वर्क फोर्स इज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सही है कि भाई एक उनका रिपोर्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, दूसरा बॉम्बे में बैठा हुआ है, तीसरा ढाका में बैठा हुआ है. सही है. दैट इज ऑल अबाउट दे आर बिल्डिंग द आइडिया ऑफ BBC एलिमेंट को, यानी कि डिजिटल एज ऑफ BBC. सही है. सो द होल आइडिया इज if there is a change in technology there must be a change in media ecology और media environment. ठीक है. अच्छा, अब ये जो मीडिया environment की चेंजिंग है, अब उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. Previously it was centralized form of media. ठीक है. And this sort of media is quite easy to control. If you control the producer, if you are able to control the producer, you will definitely control the content. अगर आपने प्रोड्यूसर को कंट्रोल कर लिया तो आप कंटेंट को कंट्रोल कर लेंगे. सो इट वाज क्वाइट इजी टू कंट्रोल द कंटेंट इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द प्रोड्यूसर. सही है. इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर हम डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट को समझते हैं. फॉरवर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. Like there is a concept of decentralized media. Decentralized media is all about a digital media. What is meant by decentralized form of media? When there is no producer and consumer war, there is a person we used to call prosumer. Prosumer used to run the decentralized form of the media. This individual is a producer and this individual is a consumer. Like we all produce some sort of stories on digital media platforms and we also consume a lot of stories. Got it? So the decentralized form of the media, the people consider, although the digital media or the social media is not completely decentralized, okay, we used to evaluate this concept that these sort of medias are not completely decentralized, but it seems decentralized because they allow the respondents to respond, they allow the consumers to respond. Am I right? And again, this sort of media is difficult to control also. देखो, automatically, why is this so? In centralized form of media, once you control the producer, it will definitely if you control the producer, you will definitely control the content. But if you talk about the prosumer form of media, let's suppose अगर आप कोई content के producer को control करते हैं तो automatically consumer भी ख़त्म हो जाएगा. The only way to control the decentralized media is to control the platform. सिर्फ platform के through ही आप control कर सकते हैं. सही है. Although अब देखिए मेरी बात सुनें. Decentralized media के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, how to control, the question is how to control. ठीक है. The basic idea is control the internet. But whenever you control the internet, it may negatively impact on you in the form of net neutrality. Government. अब नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ द इंटरनेट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन. एग्जैक्टली पाकिस्तान में 9th में के एलिमेंट को हुआ था. सही है. आपका फरवरी के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर हुआ था. सही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट ही बंद कर देती है. ठीक है. लेकिन आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ क्वेश्चन द फिनोमेना कि इफ़ यू आर बैनिंग द इंटरनेट तो यू आर ब्रेकिंग द ह्यूमन राइट्स. ठीक है कि आप लोगों का एक्सेस रोक रहे हो इंटरनेट के साथ. ठीक है. कंट्रोल द इंटरनेट. फिर दूसरा होता है कंट्रोल द प्लेटफॉर्म, कि आप प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर लो. आप क्या कर लो बेटा?
प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर लो, ठीक है। जब आप प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करोगे या फिर आप क्या करते हो, ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा? एग्जैक्टली, चाइना में वीचैट है। कंट्रोल द इंटरनेट में नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। द सेकेंड एलिमेंट इज के कंट्रोल दी प्लेटफॉर्म और कंट्रोल दी और बिल्ड द ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म लाइक वीचैट। हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन ये होता है बिल्ड ऑल्टरनेट नैरेटिव। ऑल्टरनेट नैरेटिव को बिल्ड किया जाए एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसीलिए गवर्नमेंट जो होती हैं अपने ट्विटर हैंडल्स रखती हैं, फेसबुक अकाउंट्स रखती हैं, टिकटॉक अकाउंट्स रखती हैं, ताकि वो अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचा सकें। एग्जैक्टली। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बिल्ड ऑल्टरनेटिव नैरेटिव ऑन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मीडिया। हम मोस्टली मीडिया इकोलॉजी में डिसेंट्रलाइज और डिजिटल मीडिया को डिस्कस कर रहे होंगे, हाउ इट फंक्शन एंड हाउ इट चेंज द होल ओल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स। You can easily witness the change in media ecology, like there was a centralized form of media. I'm talking about electronic form of media, okay? So initially it was centralized form of media, and it moved towards decentralized form of media, and prosumers. Prosumer is one of the component of decentralized media. There are so many things which we'll discuss it later on कि भाई ये क्या mechanism built हो रहा है। देखो actually in 21st century there are few elements we need to understand. In 21st century you can see a severe strong movement of globalization. It means the whole world become a global village. The whole world become global village. अब ग्लोबल विलेज बनने की जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पार्ट है ना, दैट इज ऑल अबाउट कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। one culture for all around the world, okay? And if you want to achieve cultural globalization, communication is required. और मीडिया इज़ रिक्वायर्ड कि पूरी दुनिया के लोग अपना कल्चर एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर सकें एंड इम्पोर्ट कर सकें। एम आई राइट? उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मीडिया की ज़रूरत है कि जो हेल्प आउट करे लोगों को अपने मैसेजेस को इधर से उधर ट्रांसमिट करने की। समझें? सो कम्युनिकेशन और मीडिया सपोर्ट रिक्वायर्ड। देखिए याद रखिएगा 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ी मूवमेंट डिजिटलाइजेशन की शुरू हुई। हमें डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करना है। हमें क्या क्रिएट करना है? डिजिटल वर्ल्ड। मैं आपसे आगे भी केस स्टडी शेयर करूंगा न्योम की, जो सऊदी अरब जनरेट कर रहा है, डिजिटलाइज न्यू मीडिया फ्यूचरिस्टिक सिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है। सो डिजिटलाइजेशन इज़ अ की कंपोनेंट बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। जब दुनिया डिजिटलाइज हो जाती है तो वहाँ उसके लिए ग्लोबलाइज होना आसान हो जाता है, बिकॉज यू कैन कनेक्ट एनी वन फ्रॉम एनी प्लेस। समझ में आई बात? फिर डिजिटलाइजेशन के साथ एम्पावरमेंट होने लगी कि एवरी इंडिविजुअल नीड टू बी एम्पावर्ड, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म की थॉट बढ़ रही है कि हर इंसान की मर्ज़ी वो ज़िंदगी जिस तरह से गुजारना चाहे वो गुजार सकता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ लोगों को बर्दाश्त करना ज़रूरी हो गया, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनाइजेशन। ठीक है। हार्मोनाइजेशन के बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डी
सेंट्रलाइजेशन जो मैं अभी पहले ऊपर पढ़ा चुका हूँ, किसी एक बंदे के कंट्रोल में हर चीज़ नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली किसके पास होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, यानी कि वो इकॉनमी, वो मैकेनिज्म जो है कोई एक बंदा उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर होती है बात। एक चीज़ जो उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट हाउ टू कंट्रोल न्यू मीडिया। देखिए द होल वर्ल्ड, दुनिया की काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है ना, वो न्यू मीडिया उनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। दैट्स व्हाई दे वांट टू कंट्रोल दैट सॉर्ट ऑफ मीडिया, ठीक है। बट इफ़ यू कंट्रोल न्यू मीडिया, ऑटोमेटिकली आप नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करोगे और आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यू मीडिया कंट्रोल की बात करूँ तो एक तरफ हमारे पास जो मोस्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल आता है वो आता है नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, ठीक है। दीज कंट्रीज आर हैविंग द मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द मीडिया, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास मिडल ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा टर्की, पाकिस्तान, ये एक मैकेनिज्म के अंदर फॉलो इन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये न्यू मीडिया कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो हम फायर वॉल की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो देयर वर अराउंड 14 प्रोग्राम्स टू कंट्रोल न्यू मीडिया। कि जो आप फायर वॉल की बात करते हैं ना, तो देयर आर ऑलमोस्ट कहा जाता है 14 प्रोग्राम्स हैं जो कि न्यू मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से, एम आई राइट, जिसके अंदर आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीका होता है करने का, उसको हम कहते हैं डीप पैकेजेस इंस्पेक्शन, DPI, ठीक है। ये नॉर्मली क्या किया जाता है, एक एक पैकेज को चेक कर रहा होता है, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो एज़ पर द लॉ है, ठीक है, कोई भी जो लोग हैं आपके, जो भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो आपकी जो वो सेलुलर कंपनीज़ हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है कि आप तकरीबन जो अभी पाकिस्तान की परसेंटेज के हिसाब से बनते हैं वो 4 मिलियन यूज़र्स तक वो उसमें रखती हैं, रडार में रखती हैं, अपनी इंस्पेक्शन में रखती हैं। समझ में आई बात। अब क्या होता है, कोई बंदा अगर एंटायर स्टेट कर रहा होता है तो मूवमेंट होता है, तो उसकी दे कैन सर्च आउट ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट, सही है। उसका CDR का एक्सेस होता है, ठीक है। कहा जाता है तकरीबन 2 महीने का CDR तो पाकिस्तान की जो सेलुलर कंपनीज होती हैं उनके पास होता है। तो आप जब भी फ़ोन पे बात कर रहे होते हो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होती है, कोई ना कोई सुन रहा होता है उसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि भाई आपके पास सोशल मीडिया के हवाले से को न्यू मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से, टेलीकॉम को कंट्रोल करने के हवाले से देयर वर अराउंड 14 प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, ठीक है। सिर्फ ये फायर वॉल नहीं है, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर, हम बहुत गरीब मुल्क हैं लेकिन हमने इस पर मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए। कुछ जर्मन कंपनी से लिए हुए हैं, कुछ कैनेडियन कंपनी से लिए हुए हैं, ठीक है। कुछ वो जो शार्क है ना, शार्क नहीं काटती हमारी केबल को, एक्चुअल के अंदर वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो जो आपका जो डेटा का इंसर्शन होता है, ठीक है, उसको जो है या अपलिंक और डाउनलिंक होता है, उन दोनों को कंट्रोल करती है ये चीज़, ठीक है। उसी तरीके से आपके मिडल ईस्ट के पास भी है, सही है, फायर वॉल्स हैं, ठीक है। और इस तरह से अब दिस इज़ अ न्यू वे टू कंट्रोल द मीडिया। समझ आई बात कि सोशल मीडिया अपनी जगह पे चलता रहेगा और लगेगा कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट इट्स नॉट ऑल राइट। लेकिन जब दुनिया में एक और फॉर्म ऑफ मीडिया आ जाता है जिसको हम वेब 3.0 कहते हैं, अब दुनिया के अंदर जो न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया आ रहा है, अब सोशल मीडिया से जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्चुअल में कोशिश की जा रही है कि डिसेंट्रलाइज किया जा सके। बिकॉज आज भी आपका न्यू मीडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स होता है, ठीक है। आज के दौर का न्यू मीडिया भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स होता है। मार्क जुकरबर्ग को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो बोलता है भाई इस चीज़ को कम्युनिटी गाइडलाइन में डाल दो, सही है, वो उसको हटा देता है, ठीक है। तो भाई ये 100% डिसेंट्रलाइज तो नहीं हुआ, यूज़र कंट्रोल तो नहीं हुआ, ठीक है। ये तो भाई प्लेटफॉर्म कंट्रोल्ड हुआ, फिर डेफिनेट सी बात है। तो ये सारे एवेलुएटिव आर्गूमेंट्स आते हैं
और इसी तरह की एक्टिविटीज़ प्लान आउट की जाती हैं कि जो जिस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ये देखो याद रखो, दुनिया के अंदर ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जंग चल रही है कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम की, सही है। देखो दुनिया के अंदर कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम की जंग है। नया से नया प्लेटफॉर्म आएगा, न्यू प्लेटफॉर्म मस्ट हैव मोर फ्रीडम, सही है। लेट्स सपोज प्रिंट से ज़्यादा फ्रीडम इलेक्ट्रॉनिक में था, इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज़्यादा फ्रीडम डिजिटल में था, एम आई राइट। अब डिजिटल से बहुत ज़्यादा फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं वेब 3.0, अभी मैं समझाऊंगा इसको थोड़ा सा आगे। दिस इज़ AI बेस्ड सिमेंटिक वेब मैकेनिज्म्स, जिसके अंदर NFTs मेटावर्स वगैरह आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अब जो दुनिया में अब जो चेंज आना है वो और फ्रीडम जाएगा, बिकॉज देखो प्रिंट पे कंट्रोल किया तो दुनिया चली गई इलेक्ट्रॉनिक पे, इलेक्ट्रॉनिक से जब दुनिया में कंट्रोल आया तो फिर दुनिया चली गई फ्रीडम के लिए डिजिटल पे, अब जब डिजिटल पे कंट्रोल आया तो अब दुनिया चली गई आगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम की जंग है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, अब ये चीज़ आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलें जी, we need to understand more about the change in media ecology, how the environment of media is constantly changing, okay. There are two basic concepts of change, okay. So whenever we talk about change, there must be some sort of change in terms of historical manner. It means time to time, while another sort of media change is all about cross-cultural. It means society to society, ठीक है। It means the media ecology is constantly changing over the period of time and society to society. That's a core basic phenomenon. How it occurs? For this reason, we need to understand evolution and revolution. There are some technologies based on evolution and there are some technologies based on revolution, सही है। अब evolution क्या होता है? This is a constant development phenomena. Constant development, बेटा technology wise constant development is a part of technological development, ठीक है। It's all about constant development, it's all about technological development. Let's suppose न्यू iPhone आ गया, ठीक है। It's a part of evolution, सही है। If you move forward, अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की उस स्पीच की जिसमें उसने फर्स्ट टाइम iPhone को लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें उसने कहा था there is a device which is considered as a Wi-Fi receiver. You can use internet. That's an MP3 device, ठीक है, MP4 device, and that's you can go for the home phone. You can call also. So what it means, that's a revolution, change of whole technology. Am I right? ठीक है। Automatically दुनिया जो है, cell phone is a revolution, smartphone is a revolution. Am I right? अभी जो recent मेटा ने कहा है कि they will launch their Meta glasses and stuff, ठीक है। By 2030 they change each and everything. This is all about the revolution, सही है। अब automatically cell phone were considered as just a device to communicate, but now it's a device to entertain, it's a device to engage, it's a device to get the change in the society also. So what it means
कि भाई दुनिया के अंदर कांस्टेंट रेवोल्यूशंस भी आती हैं और एवोल्यूशंस भी आती हैं, और एवोल्यूशंस जो होती हैं वो स्लो एंड स्टेडी होती हैं, रेवोल्यूशंस अचानक से आती है और वो पुरानी पूरी टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंट मीडिया टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, am I right? And the electronic media to the digital media. अब मैं हिस्ट्री ऑफ वेब समझाऊंगा, दैट इज़ ऑल्सो अ रेवोल्यूशनाइज फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पुरानी टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। जैसे आज के दौर में अखबार ख़त्म हो गए, देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ न्यूज़ पेपर एग्जिस्ट। देखिए, द होल आइडिया इज़ रेवोल्यूशन वर्सेस एवोल्यूशन। दुनिया की वो नेशंस जो कि रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और बहुत जल्दी आगे चले जाती हैं, वरना रेवोल्यूशन खुद अपनी जगह बना लेता, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन अपनी जगह खुद बना लेता। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोग आज पुराने वाले सेलफोन 3310 वाले जो मोटे वाले फ़ोन हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी जगह खुद बनाती है और पुरानी टेक्नोलॉजी मर जाती है। सही है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक करते हैं पाकिस्तान की केस स्टडी करते हैं। सही है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एज पर द डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से स्टार्ट कलेक्ट करने के बाद सामने आता है कि पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन 40 मिलियन की है। ये कौन रिपोर्ट दे रहा है? APNS, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, ठीक है। उसके मुताबिक न्यूज़पेपर 40 मिलियन लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, वो अखबार बन के ज़ाया हो जाता है, रद्दी पेपर वाले को दे दिया जाता है, वो कहानी अलग है। सही है। अब आते हैं TV यूज़र्स की बात की जाए इस वक्त तो पाकिस्तान में वो हैं 176 मिलियन, ठीक है। 3G एंड 4G यूज़र्स की बात की जाए इस वक्त वो हैं 136 मिलियन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ डिफ़ाइन कर रही है हमें? ये हमें पूरे ट्रेंड्स बता रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और कौन। अच्छा देखें, 176 मिलियन के अंदर ना दो तरह के यूज़र हैं। एक है टेरेस्ट्रियल यूज़र्स जिनके पास केबल टीवी नहीं है, ठीक है, और दूसरे हैं कौन से? केबल टीवी यूज़र्स जो सैटेलाइट टीवी यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया की बहुत सारी कौमें कोशिश करती हैं कि वो एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें। सही है। 2024-25 के बजट के मुताबिक, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ के मुताबिक, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एड स्पेंड, हाँ, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है, गवर्नमेंट का एड स्पेंड होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी 15 बिलियन PKR, जिसमें से अब टेक्निकल फार्मूला क्या कहता है कि भाई पाई चार्ट के हिसाब से बनाओ, यूज़र के हिसाब से डिवाइड करो, यूज़र के हिसाब से डिवाइड कर लो। अगर यूज़र के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2% आएगा प्रिंट को, डिजिटल पे स्पेंड करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट तो तकरीबन 10 बिलियन साल का खर्च करती है टू कंट्रोल दैट डिजिटल मीडिया, ठीक है, तो वो उसके ऊपर इन्वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। इस वक्त इन्होंने जो फिनोमेना बनाया है वो बनाया है 9 बिलियन PKR फॉर प्रिंट, ठीक है, एंड 6 बिलियन PKR फॉर TV। समझ में आई बात? सही है। उल्टा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, भाई अब मैं बताता हूँ आपको क्यों हुआ। अब देखो एक्चुअल में होता है ये, पाकिस्तान के अंदर ना जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना,
इन सब के हैं जितने भी न्यूज़ ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे इन सब के हैं, इन सब के पास हैं न्यूज़पेपर के लाइसेंसेस, ठीक है। अब गवर्नमेंट को जिसको नवाजना होता है उसको न्यूज़पेपर दे के एड्स दे देती है। न्यूज़पेपर के एड्स ठीक ठाक महंगे आते हैं। अगर मैं बात करूं जंग न्यूज़पेपर का, अगर हाफ फ्रंट पेज का हाफ की बात करूं तो एटलीस्ट वो 30 से 40 लाख रुपए तक का पड़ेगा एक ऐड, सही है। तो गवर्नमेंट तो यूँ अपने जानने वालों को, अपने लोगों को तो यूँ ही इन्वेस्ट कर रही होती। एक्चुअली गवर्नमेंट करती क्यों है? अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो भाई ये है गवर्नमेंट के लिए रात की नींद की गोली के पैसे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रात में नींद अच्छी आती है 15 बिलियन रुपीस खर्च करने के बाद। क्यों? अगर मीडिया को आप नहीं दोगे ये पैसे तो मीडिया आपके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाएगा और आपकी रात की नींद और आपकी हुकूमत। द सेम हैपन्स विद द इमरान खान गवर्नमेंट। इमरान खान ने सबसे पहले इसके ऊपर कंट्रोल लगाने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा भाई लोग बेरोज़गार हो जाएंगे एंड दिस एंड दैट। भाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा खुद कहा है कि भाई चूँकि प्रिंट मीडिया जो है वो ख़त्म हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो हम उसको सपोर्ट करने के 9 बिलियन रुपीस खर्च कर रहे हैं। इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स फॉर जस्ट टू सपोर्ट देयर फ्रेंड्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने स्टार्ट्स हैं और आपके सामने स्टार्ट्स बता रहे हैं कि भाई कौन सी इंडस्ट्री इवेपोरेट हो रही है। द प्रिंट इंडस्ट्री इज इवेपोरेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्रिंट जो है वो इवेपोरेट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड आप चाहें ना चाहें ये हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री, ठीक है। आप चाहे जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत जैसे कोडक था, फूजी फिल्म था, ये पहले लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इनकी डेवलपमेंट लैब्स बनाई थी, ठीक है। जब DSLR आ गया तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज हो गई और जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए तो उन्होंने फूजी फिल्म के ऊपर, कोडक के ऊपर केस कर दिया कि भाई आपने टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है। तो भाई लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता ना भाई, टेक्नोलॉजी तो चेंज हो गई। तो होता ये है कि ये 9 बिलियन रुपए इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे फिर कौम के ज़ाया होंगे, सही है, क्योंकि ये उस इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करने के लिए हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, सॉरी, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, गार्जियन है, ठीक है, गार्जियन है, वो ऑटोमेटिकली वो अपनी वेबसाइट पे कह रहा है वो हेल्प की, इकोनॉमिक सपोर्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़पेपर्स अपने आप को डेवलप कर गए इस दौरान, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स था, सही है, वो अपने आप को डेवलप कर गया, अपने आप को डिजिटल मीडिया प्रेजेंस के अंदर लेके आ गया। वो आज भी, बिकॉज वो देखो मीडिया का काम है ओपिनियन बिल्डिंग, सही है। अगर मीडिया ओपिनियन बिल्ड नहीं कर रहा होगा तो वो कोई भी फिनोमेना हो वो नहीं चल सकता। अब आप देखें ना, यूज़र वहीं पर जाएगा, कंज्यूमर वहीं पर जाएगा, इकोलॉजी शिफ्ट वहीं पर होगा जहाँ पर आपका ओपिनियन बिल्डिंग हो रही होगी। आज के दौर में डिजिटल मीडिया बना रहा है, डिजिटल मीडिया कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये जो 176 मिलियन आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ ये है कि टेरेस्ट्रियल है, सेटेलाइट पे अभी भी बहुत कम है आई राइट। ये वो लोग हैं जो कि 136 मिलियन के अलावा वो लोग आ जाते हैं बेटा जिनके पास ना फ़ोन है, ना सेटेलाइट TV है, ना स्टफ, जो आपका रूरल पॉपुलेशन में आ जाते हैं। तो आपकी मेजर पॉपुलेशन जिसने ओपिनियन लेना है, जिसने कंजम्पशन करनी है, वो 3G और 4G यूज़र है। तो दुनिया के अंदर आप चाहें ना चाहें कांस्टेंट, या तो वो इंडस्ट्री सर्वाइव करती रहती हैं, वो प्रोग्राम्स, वो न्यूज़पेपर, जैसे मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एग्जांपल दी, जो आज भी ओपिनियन फॉर्मुलेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे UK का गार्जियन, आज जो इंस्टीट्यूशन अपनी ओपिनियन फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी खो देगा मीडिया के अंदर, वो मीडिया मार्केट से बाहर चला जाएगा। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो सैटेलाइट मीडिया है या TV चैनल्स हैं, वो इंपॉर्टेंस क्यों खो रहे हैं? इसकी द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर एंड सेल्फ सेंसरशिप, अपनी पसंद नापसंद की वजह से लोगों को ये पता चल गया ये हमारी बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं हमारे सामने, सही है। TV चैनल्स वाले, यानी कि रात 8 बजे के बाद डॉक्टर खेल रहे होते हैं, पॉलिटिशियन को भी पता है क्या बोलना है, एंकर को भी पता है क्या बोलना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेटा आप वो डॉक्टर खेलते हैं, आपको दर्द हो रहा है मैं आपको दवाई दूँ, दोनों को पता है वो ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया। जैसे ही उनका ट्रस्ट ख़त्म हुआ, लोग उस टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होना शुरू हो गए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की तरफ। अब अगर तुम सोचो, सोशल मीडिया पर से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा
तो वो किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ से है। दुनिया में एक और मीडिया रेवोल्यूशन आ जाएगा, दुनिया में एक और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात? तो इस वक्त अगर मैं एड स्पेंड की बात करूँ, टेक्निकल इकोलॉजिकल, ये देखो, ये दिस इज अ स्ट्रैटेजिक मीडिया इकोलॉजी, कि हम स्ट्रैटेजिकली पूरा मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्पेंड है, क्या स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है। अगर आप इस वक्त जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितने भी जो मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं, वो सारे एड स्पेंड कहाँ पे कर रहे हैं? डिजिटल मीडिया पे कर रहे हैं। प्रिंट पे कोई ऐड देता है, बोले भाई कोई देख पढ़ ही नहीं रहा, सही है। जबकि मैं आपको मज़े की एक बात बताऊँ, एक और तफरीह वाली कहानी आपको सुनाता हूँ। गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को नवाजती है, जैसे आपकी टॉप ब्रांड्स हैं लाइक यूनिलीवर वगैरह हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने एक पूरा GRPs का मैकेनिज्म बनाया हुआ है, GRPs एंड TRPs का मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ये रेटिंग सिस्टम होता है, जिसकी रेटिंग जितनी होगी उसको उतने पैसों में रेट ऐड मिलेगा, ठीक है। जिनकी रेटिंग ज़्यादा होंगी उनको अच्छा अमाउंट मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के रेट फिक्स होते हैं, गवर्नमेंट उनके साथ रेट। अब एक चैनल जिसकी रेटिंग जो नंबर ऑफ रैंकिंग के ऊपर 9th और 10th नंबर पर आता है, 9th और 10th नंबर पर आता है, यूनिलीवर उसको 5,000 रुपये मिनट का ऐड देता है, गवर्नमेंट उसको देती है 1 लाख रुपए का मिनट, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ उसकी सेटल अप हुआ। तो इस तरह से गवर्नमेंट उनको नवाजती है और वो गवर्नमेंट के फेवर में बात करते हैं, समझ में आई बात। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है इस TV चैनल की पूरी, कि वहाँ से यूज़र शिफ्ट हो रहा है किसी और यूज़र की तरफ, किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ, समझ में आई बात। जिस दिन आपका सोशल मीडिया भी कंट्रोल हो जाएगा, लोग यहाँ से भी मूव करके कहीं और चले जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? सो दिस इज़ अ होल मैकेनिज्म जिसके ऊपर हम बात करते हैं। So this is the basic analysis of how media ecology works, ठीक है। बिकॉज देखिए, इकोनॉमिक्स इज़ अ फंडामेंटल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया इकोलॉजी। अब आप सोचें, अगर ये 15 बिलियन में से लेट्स सपोज अगर मैं बिल्कुल तरीके से इन्वेस्ट करूँ, तो 4-5 बिलियन अगर आप डिजिटल मीडिया पे लगा दोगे, तो उससे डिजिटल मीडिया फ्लरिश करेगा और बहुत सारी चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं। 5 बिलियन बहुत होता है, सही है। लेकिन चूंकि आपने अपने दोस्तों यारों को सपोर्ट करना है, रात में सुकून से सोना है, ये होता क्यों है? जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर गवर्नमेंट का लॉ है कि हर अखबार का ऐड आया है, और वो ऐड बहुत पुराना हो गया है। अब वो चूँकि ऐड बहुत पुराना हो गया है, डिजिटल मीडिया को मैनेज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अपनी आइडियाँ भी नहीं होती, वो तो जीमेल की आईडी यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है। सो द होल मैकेनिज्म इज़ कि हाउ इट गोना फ्लरिश, इट्स नॉट गोना फ्लरिश, आई एम सो सॉरी। क्लियर होगी बात क्योंकि अभी तक हम डिजिटल मीडिया पे गवर्नमेंट क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट फाइलों पे चल रही है। जब तक गवर्नमेंट फाइलों पे चलती रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक एनालिसिस आई हैव शेयर्ड विद यू। देखिए जी, यहाँ तक ना मैंने आपको एक कोर आइडिया दिया था व्हाट इकोलॉजी इज, कि इकोलॉजी होती क्या है और इकोलॉजी में फंक्शनिंग किस तरह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम फर्दर लेवल पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ बेसिक थ्योरीज बताऊंगा जो हम मीडिया इकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीडिया इकोलॉजी थ्योरी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट है हमारे पास वो हैं मार्शल मैकलुहान और नील पोस्टमैन। ये दोनों बड़े कंटेम्प्रेरी माइंडसेट के और बड़े विजनरी थ्योरिस्ट हैं, जो हम जिन्हें अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ दे फंक्शंस, ठीक है, कि ये किस तरह से मैकेनिज्म आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें हिस्ट्री ऑफ वेब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0, ठीक है जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारा, ठीक है। वेब 2.0 से हम वेब 3.0 की तरफ आ रहे हैं, सही है।
पहले इसको पढ़ाना बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, एआई वगैरह को समझना। सही है, हम क्या कहते हैं, इसके अंदर ही एआई के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स है, विल डिस्कस ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वेब के बाद जिस नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ, हम विकीनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे कि हाउ द आइडिया ऑफ विकीनॉमिक्स बिल्ट इन द वर्ल्ड, कि विकीपीडिया, यूट्यूब, सही है, विकीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे वी थिंक थ्योरी, कोलैबोरेटिव। देखो आज की दुनिया का जो मीडिया चल रहा है वो कोलैबोरेटिव मीडिया चल रहा है। कोलैबोरेटिव मीडिया का मतलब क्या होता है कि लोग जो होते हैं कोलैबोरेट करके एक कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टेल थ्योरी, ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये तो हमारी चीज़ें हो गई, वो हैं हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। हम ऑनलाइन मीडिया के हवाले से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर, ये होती क्या हैं। ठीक है, हाउ एआई वर्क्स, ये तमाम मैकेनिज्म्स किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, हमारी वी थिंक थ्योरी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, लॉन्ग टेल हो गई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गई। फिर हम डिजिटल मीडिया रिलेटेड केस स्टडीज़ करेंगे। केस स्टडीज़। अच्छा, अब उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाऊँगा। अब कुछ केस स्टडी डिजिटलाइजेशन के फेवर में होंगी, कुछ डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट में होंगी। तो हम उसमें डिस्कस करते हैं क्या चीज़, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिजिटल ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। कि भाई क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा? सही है, क्या दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, कहीं से अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ रही? ठीक है, अब अगर ये चीज़ें नहीं बढ़ रही तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पायरेसी का एलिमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी इन्वेजन के एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्राइवेसी इन्वेजन का तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो नहीं हो रहे इसके अंदर। ठीक है, अब चूँकि प्राइवेसी इन्वेजन हो सकती है तो भाई इसका मतलब ये है कि डिजिटल पेसिमिज्म हो रहा है। सही है, यानी कि देयर आर सम नेगेटिव साइड ऑफ डिजिटलाइजेशन, कि डिजिटलाइजेशन की कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर, जो दुनिया के लिए ख़तरनाक है। ठीक है जी, हम इसके अंदर कुछ केस स्टडीज़ के अंदर नेटफ्लिक्स वगैरह की भी केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे लेके चलता हूँ। सही है, सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं जनाब कोर थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीडिया इकोलॉजी को। ये मीडिया इकोलॉजी किस बला का नाम है, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट डेवलप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम सबसे पहले मीडिया इकोलॉजी थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मीडिया इकोलॉजी को इटसेल्फ डिस्कस करें। ठीक है, कि ये किस बला का नाम है। ठीक है, एक्चुअल में देखें, याद रखें, मीडिया इकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ स्टडी ऑफ मीडियम। मीडिया या फिर मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मैंने आपको इसीलिए पहले समझाया था। कि हम डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज होगी
उस तरह से मीडिया की इकोलॉजी चेंज हो जाएगी और पूरा नैरेटिव का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। हम इसके अंदर कम्युनिकेशन पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं कि दुनिया में पहले लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे और आज की दुनिया में हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपका एक तरफ मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, एक तरफ आपकी टेक्नोलॉजी आ गई, एक तरफ आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न्स आ गए। ये तमाम चीज़ें हम ये देखते हैं हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि ये इंसानों के एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट क्रिएट करता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है, लेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया के अंदर जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है तो इन्वेंशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी टेक्निकल एक बात बताऊँ बड़े मज़े की, चांसेस अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दुनिया का बेस्ट क्रिएटिव मटेरियल या बेस्ट क्रिएटिव कंटेंट या लिटरेचर जो है वो दुनिया में हमेशा ऑटोक्रेटिक टाइम पीरियड में निकला है। समझ आई बात? जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का जो गोल्डन टाइम पीरियड था टेलीविज़न का, वो कंसिडर किया जाता है आपका अल्लाह भला करे ज़िया-उल हक का टाइम पीरियड को, जबकि एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेंसरशिप थी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं मीडिया इकोलॉजी थ्योरी की बात करता हूँ, अब देखो ये जो बंदा था ना, इस बंदे से जो मुझे मोहब्बत है उसकी वजह सिर्फ एक है, ये था 1964 में, सही है, 1964 में उसने, इसका नाम था मार्शल मैक्लुहान, और उसका विजन ये था, उसने एक ऐसी थ्योरी दी जिसकी बेसिस पे आज का मीडिया बेस्ड है। यानी कि उसकी काफ़ी सारी अगर आप राइटिंग्स को पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार ये बंदा तो बहुत ही विजनरी आदमी है, तो 40-50 साल की बात पहले से देख रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब पाकिस्तान में टेलीविज़न आया है, दुनिया में टेलीविज़न हल्का हल्का ग्रो कर रहा था। इंसान जैसे उस दौर में टेलीविज़न ऐसे ही था जैसे मैं आज के दौर में चांद पे जाने की बात करूँगा आपसे। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट गेम टू ऑपरेट। स्टेट इन्वेस्ट करती थी खाली, ठीक है, प्राइवेट टीवी चैनल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है भाई, कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है, कौन हु गोना इन्वेस्ट ऑन दैट प्राइवेट टीवी चैनल्स। ठीक है, यानी कि कौन एज अ प्राइवेट टीवी चैनल जो है कौन इन्वेस्ट करेगा इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब इनके मुताबिक, मार्शल मैक्लुहान के मुताबिक, इकोलॉजी refers to the environment, कीवर्ड्स जो होंगे मैं उसको कैपिटल में लिखूंगा। ठीक है, इकोलॉजी refers to the environment in which the medium is used। यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है मेरी कि एक इन्वायरमेंट जहाँ पे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे डिफरेंट, अच्छा मीडियम क्या है? अगेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मीडियम्स है ना, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसके अंदर मीडियम यूज़ होता है, हम उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, हम क्या स्टडी करते हैं? व्हाट दे आर, ठीक है, एंड हाउ दे अफेक्ट अवर सोसाइटी। यानी कि ये मीडियम्स क्या हैं और ये सोसाइटी पर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि ये अगर आसान अल्फाज में बोलूँ
तो ये टेक्नोलॉजी क्या है और इसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, स्टारलिंक आ रहा है। अब जब स्टारलिंक आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली ये आपके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को चेंज कर लेगा, इन्वायरमेंट मैकेनिज्म को चेंज कर लेगा। जब ये इस चीज़ को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट आएगा। द ह्यूमन सोसाइटी मूव टूवर्ड्स अ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कि वो डिसेंट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगी। वर्ल्ड पावर्स अगेन इसी मैकेनिज्म को लेके चल रहे होंगे, यानी कि डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म को लेके चल रहे होंगे। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं अपने पास अपने नेक्स्ट थ्योरीज की तरफ। एग्जैक्टली ऐसा ही। अब देखिएगा, दिस इज मोर अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। नील पोस्टमैन क्या कहते हैं, इन्होंने भी सेम तरह की थ्योरी कही है। इन्होंने रेफर किया बायोलॉजी को। इनके मुताबिक इफ in biology a medium is something in which a bacterial culture grows, सही है। इन मीडिया इकोलॉजी हम मीडिया की एनवायरनमेंट की बात करें, द मीडियम इज टेक्नोलॉजी द मीडियम इज टेक्नोलॉजी। मैं आपको पहले ये बात समझा चुका हूँ। टेक्नोलॉजी की बात रेफर की थी नील पोस्टमैन ने। ठीक है, within which human culture grows। यानी कि इंसानों का कल्चर किस पे डिपेंडेंट है बेटा? इंसानों का कल्चर है टेक्नोलॉजी पे। एम आई राइट? ठीक है, आपकी सोसाइटी के अंदर बैक्टीरियल कल्चर ग्रो होता है, बायोलॉजी के अंदर मीडियम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक्चुअल में अब वही वाली बात, चेंज इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू चेंज इन कल्चर। जब पाकिस्तान में, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जब पाकिस्तान के अंदर टेलीविज़न मीडिया आया था, तो टेलीविज़न जब सेटेलाइट टीवीज़ आए थे तो लोगों को लगा कि भाई ये तो फ्रीडम आ गया। द पीपल फील दैट इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम का कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया। समझ में आ गया? लेकिन अब जब वो आज की दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेंसर्ड फॉर्म ऑफ मीडिया है वो टेलीविज़न मीडिया। टेलीविज़न इज कंसिडर्ड एज अ सेंसर्ड फॉर्म ऑफ मीडिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो ह्यूमन कल्चर भी चेंज हो जाता है। यहाँ तो कोई सवाल?